to one and all. I'm Anita Dubey, Assistant Professor, Department of Computer Science, Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. Today I'm going to discuss basic concept of object-oriented programming. So, what are the basic concept of object-oriented programming? First is object, second class, third data abstraction and encapsulation, fourth inheritance, fifth polymorphism, sixth dynamic binding, and seventh message passing. So one by one we will discuss all these concepts. C++ depends on all these concepts. So all these are very important and basic concept of object-oriented programming. So let's start with the first, that is object. Object is the basic unit of object-oriented programming. यहाँ पे C++ में हम object के बारे में बात करेंगे. Everything we will treat as an object. So object is both data and function that operate on data are bundled as a unit. Object is nothing but data and function that operate on the data are bundled as a single unit. मतलब क्या कर रहे हैं हम? डेटा और फंक्शन को रैप कर रहे हैं और वो जो बंडल है वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा. और अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. Object may be a person, a place, a bank account or anything. Whatever we want to do in our programming, we will consider it as an object. Now for example, suppose मुझे एक student नाम का object create करना है. Object create करने से पहले मुझे एक class create करना होगी student. Once I have created that class, after that I can create object. तो अगर अभी हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज स्टूडेंट या S1. स्टूडेंट अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट S1 लेंगे. अभी उसमें क्या रहेगा? डेटा एंड फंक्शन. सो डेटा, सपोज आई हैव टेकन नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. एंड हियर आई हैव टेकन 3 फंक्शंस, टोटल, एवरेज एंड डिस्प्ले. सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, so suppose its name is student1, it contains all the data and function. Now what is class? So class, first ये समझ लो कि class क्या है? user defined data type है. class क्या है? user defined data type है, which is a collection of data member and member function. So अगर आपको definition पूछी तो आप क्या बताओगे? Class is a user-defined data type which is a collection of data member and member function. Class is like a blueprint for an object. जब हम class declare करते हैं तो कोई वो memory reserve नहीं करता. So this doesn't actually define any data, but it does define what the class name means. That is, what an object of the class will consist of and what operation can be performed on such an object. जैसे for example, अभी हमने कहा था कि क्लास स्टूडेंट है. क्लास स्टूडेंट ने हमने लिया सपोज नेम, मार्क्स एंड रोल नंबर. एंड इन पब्लिक वी हैव डिफाइंड two functions. One is get data and second is display function, है ना? तो अभी हमने क्या कहा है यहाँ पे कि this doesn't actually define any data, but it does define what class name means. मतलब ये just class का एक structure है कि क्लास में क्या रहेगा? नेम, मार्क्स, रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, और उसको कैलकुलेट करने को या उसे मैनिपुलेट करने के लिए 2 फंक्शन रहेंगे. One will be a get data and other one will be display function. So next concept is data abstraction and encapsulation. What is data abstraction? Data abstraction means concentrating on essential features while neglecting unnecessary details. That is, to represent the needed information in program without presenting the details.
तो अगर हम डेटा एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो भी फीचर्स हमको इम्पोर्टेंट है हम जस्ट वो फीचर कंसिडर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द फीचर्स वी विल निग्लेक्ट। कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने क्लास में देखा कि क्लास में अगर हम स्टूडेंट के बारे में बोलेंगे तो स्टूडेंट हैज मेनी फीचर लाइक नेम, मार्क्स, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, फोन नंबर, एड्रेस। बट यहाँ पे हमको क्या जरूरी है? नेम, मार्क्स, रोल नंबर। तो हमने क्या किया? उस पे फोकस किया एंड रेस्ट वी हैव निग्लेक्टेड। सो दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन. The wrapping up of data and functions into single unit is known as encapsulation. ये जो हम डेटा और फंक्शन को बाइंड कर रहे हैं सिंगल यूनिट में, that is called as encapsulation. Data encapsulation is the most striking feature of a class. Data encapsulation ये बहुत important feature है. The data is not accessible to the outside world and only those functions which are wrapped in the class can access it. अभी जब हम क्लास में कुछ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि जो डेटा है it is not accessible to the outside world. Who can access the data? Only those functions which are wrapped in the class. मतलब अब अगर अभी हम ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे नेम, मार्क्स एंड रोल नंबर ये 3 डेटा मेंबर है। अभी इनको कौन एक्सेस करेगा? तो इसी क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस करेंगे, जैसे गेट डेटा एंड डिस्प्ले। ये आउटसाइड द क्लास ये जो मेंबर्स है इनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। So the insulation of data from direct access by the program is called data hiding और information hiding. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा हाइड हो रहा है या इंफॉर्मेशन हाइड हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग. Since the classes use the concept of data abstraction, they are known as abstract data type. क्लासेस को क्या कहते हैं? Abstract data type. Since the classes use the concept of data abstraction, they are known as abstract data type. Next feature is inheritance. One of the most useful aspect of object-oriented programming is code reusability. मतलब object-oriented programming में हम क्या कर सकते हैं? जो कोड हमने डेवलप किया है वो हम रीयूज कर सकते. मीन्स देयर इज नो नीड टू डेवलप सेम कोड अगेन. एज द नेम सजेस्ट, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास. इनहेरिटेंस करना मतलब क्या करना है? एक क्लास हमने ऑलरेडी डेवलप किया है, उस पर से हम एक न्यू क्लास डिराइव कर रहे हैं. अभी The existing class is called as a base class और super class. जो already existing class है उसको हम क्या बोलेंगे? Base class और super class. And new class is called as derived class और sub class. जो new class हम बनाने जा रहे हैं उसको हम derived class कह सकते हैं या तो sub class कह सकते हैं. और हम इसको कैसे define कर सकते हैं? Inheritance is the process by which object of one class acquire the properties of object of another class. ठीक है? Inheritance is the process by which object of one class acquire the properties of objects of another class. तो ये हो गया inheritance, which plays very important role in C++. Next है polymorphism. The ability to use an operator or function in different ways. In other words, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? The ability to use an operator or function in different ways or giving different meaning or functions to the operators or function is called polymorphism. अभी देखो, polymorphism वर्ड ये ग्रीक वर्ड है.
Poly means many and morphism means form. So one name many form. Polymorphism मतलब क्या है? One name many form. That is a single function or an operator functioning in many different ways. Depend upon the usage is called polymorphism. मतलब polymorphism हम ऑपरेटर्स के लिए भी यूज कर सकते या तो फंक्शंस के लिए यूज कर सकते. जब हम ऑपरेटर के लिए यूज करते तो उसको बोलते ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और जब हम फंक्शंस के लिए यूज करते तब उसको बोलते फंक्शन ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग इज अ ब्रांच ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सो फंक्शन, आप अगर एक फंक्शन लिया और उसको हमने अलग अलग टास्क दिए तो वो हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन वन फंक्शन एरिया. फंक्शन का नेम है एरिया. इफ आई एम कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट फंक्शन नेम सेम है एरिया, लेकिन मैं वही फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग. वैसे ही वन ऑपरेटर अगर मैंने डिफरेंट इसे यूज किया कि सपोज प्लस है, तो अगर मैं नंबर ऐड करूंगी तो आई विल गेट द सम ऑफ टू नंबर. बट इफ आई विल ऐड कैरेक्टर डेटा देन आई विल गेट कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम दैट टू स्ट्रिंग. तो इस तरह से इसको मतलब ऑपरेटर प्लस सेम है दोनों जगह पे, बट डिफरेंट मीनिंग दे रहा है डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप. कि जब हम इंटीजर के साथ यूज कर रहे हैं तो वो हमको सम दे रहा है, जब हम कैरेक्टर डेटा के साथ यूज कर रहे हैं तो कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग दे रहा है. देन डायनामिक बाइंडिंग. अभी जहां पे भी डायनामिक वर्ड आता है उसका मतलब है रन टाइम. सो डायनामिक बाइंडिंग इज द मेथड ऑफ लिंकिंग प्रोसीजर कॉल विथ इट्स कोड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कोड. देखो, डायनामिक बाइंडिंग क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि प्रोसीजर लिंक कर रहा है, प्रोसीजर कॉल को वो उसका कोड लिंक कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? एट द टाइम ऑफ रन टाइम. इसीलिए इसको डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट ऑकर्स एट रन टाइम. डायनामिक बाइंडिंग इज कॉल्ड एट लेट बाइंडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग भी रहता है और डायनामिक बाइंडिंग भी रहता है. स्टैटिक बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं और डायनामिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग कहते हैं. क्योंकि स्टैटिक बाइंडिंग कब होता है? कंपाइल टाइम होता है, और डायनामिक बाइंडिंग कब होता है? रन टाइम होता है, और प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है उसके बाद रन होता है. इसलिए स्टैटिक बाइंडिंग इज कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग, whereas dynamic binding is called late binding. Now last is message passing. Message passing is the method of exchanging messages among object. क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? मैसेज पास कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बिटवीन देमसेल्फ सिमिलर टू ह्यूमंस. जैसे हम मैसेज पास करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स में भी मैसेज पासिंग होता है. इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस और मेथड्स हेल्प टू पास मैसेजेस. इन एडिशन, अभी ये जो मैसेज पासिंग का कंसेप्ट है ये पैरेलल प्रोसेसिंग या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में भी यूज होता है. ठीक है, अभी हम ये नहीं देखेंगे. उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग. अभी डायनामिक बाइंडिंग क्या है? डायनामिक बाइंडिंग इज द मेथड ऑफ लिंकिंग अ प्रोसीजर कॉल टू द रिलेवेंट कोड, और कब? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और एट रन टाइम. व्हाइल message passing is the method of exchanging messages between object in object oriented programming. तो मैसेज पासिंग में क्या हो रहा है? मैसेजेस पास हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में, और डायनेमिक बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि जो प्रोसीजर कॉल है वो रिलेवेंट कोड के साथ बाइंड हो रहा है, और कब हो रहा है? रन टाइम में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैसेज पासिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग. सो यहाँ पे हमने पूरे कंसेप्ट देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के. सो व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? वंस अगेन आई विल रिपीट जस्ट द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट, और ये आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट